إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمتی کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائی انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے. قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، ان کے اوپر ایمان لائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے. تو جو شخص اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے. قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی. پچھلے کئی خطبوں میں مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر کی زندگی، پھر ایک انسان جن کا ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ہوتا ہے ان کی موت کس انداز میں ہوتی ہے، پھر ایک وہ انسان جن کا ایمان اللہ رسول پر نہیں ہوتا ہے، یا جو گنہگار ہوتے ہیں، فاسق و فاجر ہوتے ہیں، ان کی موت کس طرح سے ہوتی ہے، ان کے تعلق سے گفتگو ہوئی. انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں آج بھی خطبہ ہوگا. قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جو بھی پیدا ہوا ہے، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، اسے موت کا مزہ ایک دن چکھنا ہے. کوئی بھی جاندار، کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے جن کے اوپر موت طاری نہیں ہوگی. ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. بتلایا گیا تھا کہ انسانی دور کے 4 مراحل ہوتے ہیں. پہلے مرحلے میں انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جو مختصر مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد دنیا میں آتا ہے
تو اس سے یہ بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آنے کے بعد ان کا یہ دوسرا مرحلہ، دوسرا دور شروع ہوتا ہے، جس میں انسان اس دوسرے مرحلے میں رہ کر اپنی آخرت کو بناتا ہے یا تو بگاڑتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے، موت کے بعد انسان کے اوپر موت طاری ہوتی ہے اور تیسرا مرحلہ، تیسرا دور شروع ہوتا ہے، جس کو برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے جو دنیا کی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی کافی لمبی ہوتی ہے، یہ مرحلہ کافی لمبا ہوتا ہے، اور انسان کے لیے یہ مرحلہ اگر مومن ہے تو ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن اگر وہ کافر ہے یا گنہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، تو پھر ان کے لیے یہ مرحلہ بڑا مشکل ثابت ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ انسان کا شروع ہوتا ہے، عالم برزخ کے بعد، قبر کی زندگی کے بعد میدان محشر کا مرحلہ، دوبارہ زندہ کیے جانے کا مرحلہ، اور اس کے بعد حساب و کتاب، جنت اور جہنم، یہ ٹھکانہ انسان کا مقدر بنتا ہے۔ یہ چار مرحلے انسان کے یہ بتلایا گیا تھا مختصراً پچھلے خطبے میں۔ تو ایک انسان جب ان کی موت ہوتی ہے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان جب مر جاتا ہے، مختلف احادیث کا نچوڑ میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ انسان جب مرتا ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، اور ایک لمحے کے لیے ان کو مہلت نہیں ملتی ہے، ایک سیکنڈ کے لیے، اس سے بھی کم وقت کے لیے ان کو مہلت نہیں ملتی ہے، موت اپنے وقت پر آ جاتی ہے اور انسان کو دبوچ لیتی ہے۔ اور جب انسان مر جاتا ہے، اگر وہ مومن ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا، رسول پر ایمان رکھنے والا، یوم آخرت پر ایمان رکھنے والا، اور پھر کتاب اللہ پر، احادیث رسول پر، قیامت پر، تقدیر پر، فرشتوں پر ایمان رکھنے والا، پھر اس کے مطابق دنیا میں کیا ہے، نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، عمل صالح۔ اس لیے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے، بغیر نیک عمل کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، کوئی ویلو نہیں ہے۔ ایمان اسی وقت معتبر ہوگا جب انسان ایمان لانے کے بعد نیک عمل شروع کرے گا۔ نیک اعمال میں سے 5 وقت نماز کی ادائیگی ہے، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے ہیں جو کہ واجب ہیں، سال بھر میں مال ہو جائے تو 1 مرتبہ زکوٰۃ ہے، پوری زندگی میں اگر مال ہو جائے، خانہ کعبہ تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے تو حج کرنا ہے۔ یہ سب واجبات میں سے ہیں، ان سب کو انسان ادا کرتا ہے، یہ سب نیک اعمال ہیں، واجبات میں سے ہیں۔ پھر انسان نے جو ایمان لایا ہے ان کا اعتبار ہے، ان کا ویلو ہے، اور ان واجبات کو ادا کرنے کے بعد پھر انسان نفلی عبادتوں کو انجام دیتا ہے، اپنے مرتبے کو بڑھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو اللہ رب العالمین کے دربار میں بڑھانے کے لیے وہ نفلی عبادتیں ہیں۔ وقت ملے تب زیادہ سے زیادہ نفلی نمازیں آپ پڑھیں، جتنی چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں نفلی نمازیں، 2 رکعت پڑھی اور سلام پھرتے چلے جائیے۔ مال جتنا ہے آپ کے پاس، زکوٰۃ آپ نے نکال دی ہے جو واجب تھی، نکالنے کے بعد اب نفلی صدقے تم جتنا چاہو کر سکتے ہو۔ اور اسی طرح سے حج آپ کے پر واجب ہے، آپ نے حج کر لیا ہے، واجب والا حج، اس کے باوجود آپ کے پاس اگر آپ کے پاس مال ہے تو آپ نفلی حج بھی کریں، یا آپ نہیں جا سکتے ہیں کمزوری یا کسی اور وجہ سے، تو جو لوگ کیا ہیں جانے کے لائق ہیں ان سے کیا ہے اپنے پیسے کے ذریعے سے آپ حج کروا سکتے ہیں، آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ یہ نفلی عبادتیں، تو فرائض کو ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتوں کو انجام دینا، یہ عمل صالح ہے، یہ نیک اعمال ہیں۔ تو ایک انسان جو مومن ہوتا ہے، فرائض کی ادائیگی کرنے والا ہوتا ہے، نفلی عبادتوں کو انجام دینے والا ہوتا ہے، ان کے اوپر جب موت طاری ہوتی ہے، موت کا جب فرشتہ آتا ہے اور ان کی روح کو بآسانی قبض کر لیتا ہے، اور قبض کر لینے کے بعد اب ان کی تجہیز اور تکفین کی ان کے رشتہ دار تیاری کرنے لگتے ہیں، تو اس وقت یہ میت، یہ مردہ کیا ہے کہتا ہے لوگوں سے، وہ سنیے آپ، جو لوگ نیک ہوتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو، کہاں؟
जल्दी ले चलो मुझे कब्रस्तान, कब्र की तरफ, अपना ठिकाना। चूंकि जो लोग मोमिन होते हैं, नेक होते हैं, उनको क्या है, अल्लाह की जन्नत की खुशखबरी दिए हुए होते हैं कि चलो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की नियामतों की तरफ, चलो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिज़्क़ की तरफ, चलो तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नतों की तरफ। उसी वक्त उनको खुशखबरी मिल जाती है, उसी वक्त उनको महसूस हो जाता है, मालूम हो जाता है कि मेरा ठिकाना कहाँ होने वाला। इसलिए क्या है, वो मैयत, वो मुर्दा कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो। जल्दी का मुतालबा करता है। हम और आप, इंसान और जिन, उनकी इस आवाज को नहीं सुन सकते हैं, बाकी सारी चीजें सुन। और जो लोग बुरे होते हैं, काफिर होते हैं, मुनाफिक होते हैं, मुशरिक होते हैं, फासिको फाजिर होते हैं, गुनहगार होते हैं, सही मानों में अल्लाह रसूल पर उनका ईमान नहीं होता है, नेक अमाल नहीं किए हुए होते हैं, बुराइयों में जिंदगी गुजरती है, मनमाने जिंदगी उनकी गुजरती है, वो खौफ ज़दा है, सहमा हुआ है, डरा हुआ है। वो तो मौत चाहता ही नहीं था, वो तो मौत के फरिश्ते को देखने के बाद बदन में रूह छिप रही थी, इधर उधर भाग रही थी, दौड़ रही थी। मलकुल मौत ने क्या है, गोता लगाकर क्या है, रूह को निकाला। जिस तरह गोताखोर समुद्र में गोता लगाता है, सीप से मोतियों को निकालता है, उसी तरह से मलकुल मौत क्या है, बदकार लोगों के जिस्म में दाखिल होकर गोता लगाकर रूह को खींच कर निकालता है। चूंकि वो निकलना नहीं चाहती है, वो इंसान मरना नहीं चाहता है, छुपता है, लेकिन वो आजिज है, बेबस है, सारी ताकतें जवाब दे चुकी हैं, वो बेबस हो चुका है, उनको जाना ही उपाय नहीं है, वो मर चुका। फरिश्ते रूह कब्ज कर चुके, तजहीज़ो तकफीन के लिए उनकी तैयारी हो रही है। अब ये मैयत, ये मुर्दा अब कहता है मुझे कहां ले जा रहे हैं। जब तैयारी हो जाती है ले जाने के लिए, अब ले जाना है कब्रिस्तान की तरफ, ये कहता है मुझे कहां ले जा रहे हैं, मत ले जाओ, कहां ले जा रहे हो। चूंकि उनको मौत के वक्त फरिश्ते उनका ठिकाना दिखा दिए होते हैं, उनको बता दिया होता है चलो अल्लाह के गजब की तरफ, अल्लाह की मार की तरफ, उनकी नाराजगी की तरफ। उसी वक्त उनको महसूस हो जाता है कि मेरा ठिकाना कहां होने वाला है। दुनिया की ऐश व इशरत, मनमानी जिंदगी, ये सब कुछ किया है, उस वक्त समझ में आ जाता है जब मौत का फरिश्ता पहुंच जाता है उनके पास, तो उस वक्त कहता है मुझे कहां लेकर जा रहे हैं, क्यों लेके जा रहे हो। चूंकि घबराया हुआ है, डरा हुआ है, सहमा हुआ है, जाना नहीं चाहता है। उनको मालूम है कि मेरा ठिकाना जहन्नम है, अजाब कब्र में मुब्तला हो जाएंगे, इसलिए जाना नहीं चाहता। ये मोमिन की मौत और काफिर गुनहगार फासिक की मौत के बाद जो तजहीज़ व तकफीन के लिए उनको कब्रिस्तान की तरफ ले जाया जाता है, या काफिर व मुशरिक होते हैं तो जलाने के लिए अपने यहां उनको ले जाया जाता है, तो उनकी ये कैफियत होती है, वो बोलते हैं, बात आवाज लगाते हैं। और फिर कब्रिस्तान में पहुंचने के बाद जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है, दफन कर दिया जाता है, और लोग वहां से वापस होने लगते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में बयान फरमाते हैं कि मैयत के साथ दुनिया से 3 चीजें जाती हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैयत के साथ 3 चीजें जाती हैं। एक, उनके अहलो अयाल, उनके रिश्तेदार वगैरह। दूसरा, उनका अमल, जो उसने अमल किया है जिंदगी में। और तीसरा, उनका माल उनके साथ जाता है। ये 3 चीजें मैयत के साथ जाती हैं, और तीनों में से दफन करने के बाद 2 चीजें वापस आ जाती हैं, एक ही चीज उनके साथ रहती है। 2 चीजें कौन कौन सी वापस होती हैं? उनके रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, लोग जो उनको दफन करने के लिए गए हुए थे, वो वापस आ गए। उनका माल उनके साथ जाता है, वो भी वापस आ गया। तीसरी चीज जो अमल है, जो उसने अपनी जिंदगी में नेक अमल किया या बुरा अमल किया है, वो उनके साथ है, उनके साथ है।
वो साथ और पीछा छोड़ने वाला नहीं है, उनके साथ है, रहेगा उनके साथ। अब इंसान अकेला कब्र में पड़ा है, कोई दोस्त अहबाब नहीं, कोई नहीं उनके साथ है। जिन लोगों ने दुनिया में उनको क्या है बुरा काम करने के लिए सलाह दिया था, मशवरा दिया था, उकसाया था, राह दिखाया था, गैरुल्लाह की इबादत में लगाया था, शिर्क पर लगाया था, बिदअत पर लगाया था, खुराफात पर लगाए थे, और मुख्तलिफ किस्म की बुराइयों को अंजाम देने के लिए, चाहे वो चोरी की शक्ल में हो, जिनाकारी की शक्ल में हो, सूदखोरी की शक्ल में हो, बदकारी की शक्ल में हो, कत्ल की शक्ल में हो, कोई भी गुनाह हो, करने पर जिन्होंने भी उनको दुनिया में राह दिखाई थी, वो अब उनके साथ वहां पर नहीं है। वो इंसान अकेले है, तने तनहा है, उनके साथ उनका अमल है। हदीसों में जिक्र आता है कि जब इंसान मैयत को कब्र में रखने के बाद वापस लौटते ही 40 कदम तक वो मैयत लोगों के कदमों की आहट को सुनता है। 40 कदम तक लोग वहां से जो दफन करके वापस हो रहे हैं, 40 कदम तक दुनिया की आवाज और इन दफन करने वाले लोगों के कदमों की आहट वो सुन रहा है, सुन रहा है। 40वां के बाद 41वां कदम जब उठता है, दुनिया की आवाज बंद, लॉक हो गया। अब कुछ भी दुनिया की आवाज उनको नहीं सुनाई देती, अब कुछ भी वो नहीं सुन सकता है। तुम लाखों हजारों बार कब्र में जाकर पुकारो, वली कहकर, औलियाउल्लाह कहकर, कुछ भी कह के, पीर कह के पुकारो उनको, तुम मदद मांगो तुम उनसे, और कुछ भी तुम करो, दुनिया से क्या है उनका कनेक्शन खत्म हो चुका है, तो कुछ भी आवाज नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। ये 40 कदम तक आवाज सुनते हैं, उसके बाद लॉक। उसके बाद 2 फरिश्ते हाजिर होते हैं कब्र में। ये कब्र की जिंदगी, 2 फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। एक फरिश्ता उनमें से मुनकिर, दूसरा नकीर होता है। ये मुनकिर और नकीर की शक्ल में 2 फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं, सियाह रंग के, काले रंग के, नीले रंग के। ये दोनों फरिश्ते नाजिल होते हैं। अगर बंदा नेक है, मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह तो दुनिया में उसने राजी किया है। ये फरिश्ते पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद अब उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनको उठाकर बैठाते हैं, बैठाते हैं उनको उठाकर। हदीस में जिक्र आता है कि उनको बैठाते हैं, वो आंख मलता हुआ उठता है, और उठने के बाद मौसम ऐसा अल्लाह रब्बुल आलमीन कर देता है कब्र में कि उनको महसूस होता है कि सूरज डूबने वाला है, बहुत जल्द सूरज डूब जाएगा। ये वक्त उनके सामने होता है, ये वक्त उनके सामने कर दिया जाता है। चूंकि दुनिया में नमाजी था, परहेजगार था, मुत्तकी था, अल्लाह रसूल की बात पर चलने वाला था, फरिश्ते उठाकर बैठाते ही आंख मलता हुआ उठता है, सूरज डूबता हुआ देखकर कहता है, तुम कौन हो, हटो जल्दी, सूरज डूबने जा रहा है, मुझे नमाज पढ़ने दो, वक्त निकलता चला जा रहा है, मुझे जल्दी नमाज पढ़ने दो। कितना ख्याल है, किस आदमी को ख्याल आएगा कब्र में नमाज पढ़ने का, जबकि कब्र में नमाज पढ़नी नहीं है, ये अमल दुनिया का था। ये किस आदमी को ख्याल आएगा, ये उसी आदमी को ख्याल आएगा जिसने दुनिया में नमाज की हिफाजत की है, पाबंदी की है, अल्लाह रसूल को नमाज के जरिए से राजी किया, ये उसको ख्याल आएगा। तो फरिश्तों से कहता है कि हटो। वो उनको क्या पता है ये फरिश्ते हैं, क्या हैं, क्यों आए हैं, वो तो देख रहा है सूरज डूबने वाला है, नमाज का वक्त निकला चला जा रहा है, जल्दी से हमको नमाज पढ़नी। एक मोमिन को हमेशा नमाज की फिक्र होती है, जिस काम में भी मुनहमिक होता है, मसरूफ होता है, वो नमाज का फिक्रमंद होता है, एक वक्त पढ़ता है और दूसरे का इंतजार करता है। ये मोमिन की पहचान होती है कि जोहर पढ़ा असर के लिए इंतजार में है, असर पढ़ा मगरिब के लिए इंतजार में है, कब वक्त हो नमाज पढ़े, और मगरिब पढ़ा ईशा के लिए इंतजार में है, ईशा पढ़ा फजर के लिए इंतजार में है कि फजर कैसे जागे, किस तरह से उठे ताकि फजर की नमाज हम जमात के साथ पढ़ सकें। ये फिक्रमंद है मोमिन।
ऐसे ही आदमी वहां कहेगा कि नमाज पढ़ने दो मुझे, हटो, कौन हो? अब फरिश्ते उनको कहते हैं कि रुको, यहां नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे सवालों का जवाब दो। अब उनको सीधा बैठाते हैं कि मेरे सवालों का जवाब दो। अब ये दोनों फरिश्ते मुनकिर और नकीर की शक्ल में, काले और नीले रंग की शक्ल में जो आए हुए हैं, अब उनसे सवाल करते हैं, जवाब मिलता है। पहला सवाल होता है मर रब्बुका। मुख्तलिफ हदीसों में मुख्तलिफ तरह निचोड़ में बतला रहा हूं, मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? पहला सवाल होता है। सवाल जो सवाल होने वाला है, पर्चा आउट है। सवाल क्या होगा? तैयारी कर लो दुनिया में। अल्लाह ने अंधेरे में नहीं रखा है, कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, नबी की शक्ल में सारे क्वेश्चन आउट कर दिए हैं कि ये सब सवालात होंगे। तैयारी कर लो तुम दुनिया की जिंदगी में, दुनिया के मरहलों में तुम तैयारी कर लो। सवालात वाज़े हैं, अल्लाह के इम्तिहान ऐसा है, वो क्वेश्चन पहले ही आपको दे चुका है, तो अपनी पूरी जिंदगी में इसकी तैयारी कर लो। इसके बावजूद इंसान अगर तैयारी नहीं कर सकता है तो कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना बड़ा अहमक है कि एक बच्चा जब स्कूल में एडमिशन लेता है, दाखिला लेता है, और इम्तिहान का वक्त उनको बता दिया जाता है कि फला तारीख को इम्तिहान होने वाला है, तुम तैयारी करो, तो बच्चा अंधेरे घर में तैयारी करता है। उनको ये नहीं मालूम होता है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा सवाल आने वाला है। अंदाजन बच्चा तैयारी करता है, और तैयारी करने के बाद जिन चीजों की उन्होंने तैयारी की है, क्वेश्चन टकरा भी सकता है और नहीं भी टकरा सकता। अंदाजन तैयारी किया है, लेकिन अल्लाह का क्वेश्चन, अल्लाह का सवाल वाज़े है, पूछा किया जाएगा। इसके बावजूद अगर इंसानों ने तैयारी ना की तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, उससे बड़ा अहमक कोई नहीं है। इसलिए एक बार मौका अल्लाह देता है, एक ही बार कब्र में सवाल जवाब होगा और आपको जवाब देना है। दूसरा मौका आपके पास नहीं है। उसके बाद आपका ठिकाना जन्नत है या तो जहन्नम है। होशियार लोग तैयारी कर लेते हैं, बेवकूफ लोग दुनिया की जिंदगी में मगन हो जाते हैं। सवाल होता है मर रब्बुका, तेरा रब कौन है? चूंकि बंदा मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल होता है मा दीनुका, तेरा दीन क्या है, तेरा मजहब क्या है? चूंकि दीन इस्लाम पर अमल किया है, जवाब देता है दीन इस्लाम, मेरा दीन, मेरा मजहब इस्लाम है। तीसरा सवाल होता है मन हाज़र रजुल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इशारा करके पूछा जाता है, ये आदमी कौन है? अब हो सकता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल सूरत को सामने दिखाई जाती हो, यह भी हो सकता है ऐसे इशारा किया जाता है। बहरहाल ये वाज़े नहीं है पूरा, इसलिए हम भी वाज़े नहीं कर सकते। मन हाज़र रजूल, इस आदमी के बारे में बताओ कौन है? मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल है। चूंकि उनके ऊपर इन्होंने ईमान लाया था, दुनिया में ईमान लाने के बाद उनके मुताबिक जिंदगी गुजारी थी, अमल किया था, तीनों जवाबात सही। अल्लाह एक, अल्लाह ये मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। तीन सवाल, तीनों का सही जवाब। अब उसके बाद क्या है, उनसे पूछा जाता है तुमको ये कैसे पता चला, जवाब तुम सही कैसे देने गए? कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब कुरान को पढ़ा और उसके बाद मुझे इसका इल्म हुआ, ये जवाब मिलता है। बहरहाल मुख्तसरन आवाज आती है, इनके लिए जन्नती बिछौना बिछा दो, जन्नत के दरवाजे खोल दो, खिड़कियां खोल दो, बिछौना बिछा दो। और फिर हदीसों में जिक्र आता है, अब उनसे कहा जाता है नम का नौमतिल उरूस, उस दुल्हे के मानिंद सो जाओ जो दुल्हा क्या है, सो जाता है शबे ज़फ़ाफ में, आराम से सो जाता है, और अब उसका उठाने वाला कोई नहीं होता है, सिर्फ उसका सबसे ज्यादा जो महबूब होता है उनके अहल में से वही उसको उठाता है, बाकी कोई उनके पास नहीं जाता है। उसी तरह से उस दुल्हे की तरह से उनसे कहा जाता है सो जाओ। अब क़यामत के दिन क्या है, उठाया जाएगा।
आराम से क्या है उनको सुला दिया जाता है। ये मोमिन की जिंदगी कब्र की जिंदगी, मरने के बाद। वही आदमी जब बुरा होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है, काफिर होता है, मुनाफिक होता है, मुशरिक होता है, तीनों सवालात इनसे भी होते हैं। मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? वो तो घबराया हुआ है। इनकी में पहुंचे हैं, फरिश्तों की शक्ल को देखने के बाद ही तो इनकी हवा उखड़ चुकी है। ये जवाब क्या देंगे? कहते हैं हाय मुसीबत, मुझे नहीं पता। दूसरा क्या है सवाल होता है, मादीनो, तुम्हारा दीन क्या है? जवाब देता है हाय मुसीबत, मुझे नहीं पता। तीसरा सवाल होता है मन हाज़र रजुल, ये आदमी कौन है? जवाब मिलता है हाय अफसोस, मुझे नहीं पता। तीनों सवालात के जवाब नेगेटिव नहीं दे पाता है, चूंकि अल्लाह पर ईमान नहीं, रसूल पर ईमान नहीं, कुरान और हदीस पर दुनिया में नहीं चला, इसलिए वहां जवाबात भी नहीं दे सके। अब क्या है, आवाज आती है कि आदमी झूठा है। इनके इल्म में आ चुका था कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, इनके इल्म में था कुरान बरहक किताब है, अल्लाह एक है, मजहब इस्लाम ये सबसे सच्चा सही मजहब है, इनको पता था। ये झूठ बोल रहा है। अब कहा जाता है कि इनके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दो, आग का बिछौना बिछा दो, आग का लिबास पहना दो, गर्म हवा आने लगती है, बदबू आने लगती है, और उनके लिए अजाब वहां पर शुरू हो जाता है। अजाब मुहैया कर दिया जाता है। एक फरिश्ता जो अंधा होता है, बहरा होता है, गूंगा होता है, अंधा, बहरा, गूंगा, उसको अजाब देने के लिए ड्यूटी में लगा देता है अल्लाह ताला। क्या उनकी ड्यूटी होती है? वो गुर्ज लेकर आता है, सीख लेकर आता है। जवाब जब नेगेटिव में मिलता है तो उस गुर्ज के जरिए से क्या है, उस मुर्दे को, उस बदबख्त को क्या है, मारता है जोर से, और मारने के बाद मिट्टी में क्या है, मिल जाता है। फिर उसके बाद फिर शकल उनकी वैसे बनती है, फिर मारता है। अजाब शुरू। ये कब्र की जिंदगी, बुरे लोगों का ये अंजाम, ये कब्र की जिंदगी है बुरे लोगों के लिए। अब इनको आजाद होता रहेगा कब तक? कयामत तक। ये बरज़ख की जिंदगी है, ये कब्र की जिंदगी है। अब इनको अजाब में मुब्तला कर दिया गया है, अब ये इनको अजाब में मुब्तला कर दिया गया है। अब इनको कयामत तक क्या है, ऐसे ही अजाब दिया जाता रहेगा। ये कब्र की जिंदगी। हदीसों में जिक्र आता है, फिर क्या है, इनका ठिकाना दिखाया जाता है। बुरे लोग हैं तो जहन्नम, नेक लोग हैं तो जन्नत। जो जिसमें है उसके बारे में कहा जाता है कि इसी हालत में तुमको कयामत में उठाया जाएगा। नेक लोग हैं तो जन्नत की तरफ इशारा करके, बुरे लोग हैं तो जहन्नम की तरफ इशारा करके उठाया जाएगा। यह है कब्र की जिंदगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद, और सुनिए, जब इंसान को कब्र में रख दिया जाता है तो रख दिए जाने के बाद कब्र इंसान को दबोचती है। हजरत मुआज़ इब्न जबर हजरत साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो शख्स है, जब इनकी मौत हो गई साद इब्न मुआज़ की, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इनकी मौत के बाद, तजहीज़ व तकफीन के बाद अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि अल्लाह का अर्श हिल चुका है इनकी मौत पर। कितने बड़े सहाबी थे, कितने नेक मुत्तकी परहेजगार थे। अल्लाह का अर्श हिल चुका है इनकी मौत पर। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, आसमान के दरवाजे इनके लिए खोल दिए गए। और तीसरी बात आपने बयान फरमाई, 70,000 फरिश्ते इनकी नमाज़े जनाजा में शरीक भी हुए। अल्लाह का अर्श हिल चुका है और आसमान के दरवाजे इनके लिए खोल दिए गए हैं। 70,000 फरिश्ते इनके जनाजे में शरीक हो चुके हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाता है, सुम्मा ज़ुम्मा ज़म्मतन,
कबर को दबोच दिया गया है। कबर ने क्या है, इनको दबोच लिया फिर खोल दिया। क्या मालूम हुआ कि इंसान को जब कबर में रख दिया जाता है तो कबर उनको दबोचती है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी हदीस में बयान फरमाते हैं, हजरत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा रावी हदीस है, कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अगर किसी भी इंसान को कब्र के दबोचने से अगर नजात मिलती तो साद इब्न मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नजात मिलती, लेकिन इनको भी नजात नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि हर एक को क्या है, कब्र दबोचेगी। ये कब्र की जिंदगी। जो लोग नेक होंगे, मोमिन होंगे, फिर उनको छोड़ दिया जाएगा। जो लोग बुरे होंगे उनका अजाब शुरू हो जाएगा। ये कब्र का मरहला है, ये कब्र की जिंदगी है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। कब्र में मुख्तलिफ तरह का अजाब होता है। अजाब कब्र बरहक है, बरज़ख की जिंदगी में क्या है, बुरे लोगों के लिए अजाब है, नेक लोगों के लिए आराम है। ये कुरान से अहादीस मौजूद है, जैसा कि अभी हदीसों से बतलाया गया, इनसे पता चल रहा है कि कब्र में अजाब होता है और कब्र में आराम भी मिलता है। और कुरान करीम ने बयान फरमाया आले फिरौन के बारे में, फिरौन और फिरौनियों के बारे में बयान फरमाया, अन्नार युरद, आग क्या है, सुबह व शाम इनके ऊपर पेश की जाती है। सुबह शाम इनके ऊपर पेश की जाती है आग, और ये कयामत तक जारी रहेगा, यहां तक कि कयामत हो जाए। फिर इसी हालत में इनको क्या है, कयामत के दिन उठाया जाएगा। फिर इससे भी बड़ा अजाब, उसमें क्या है, इनको दाखिल किया जाएगा। कहा जाएगा जहन्नम में अब दाखिल हो जाओ। गोया कि अभी कब्र में जो अजाब हो रहा है वो कयामत के बाद जो जहन्नम का अजाब है, जहन्नम में जो इंसान को दाखिल कर दिया जाएगा, अभी उतना अजाब नहीं है। इससे भी बड़े अजाब में जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, जहां इंसान अगर कुफ्र और शिर्क की हालत में मरा है तो हमेशा रहेगा। तो इस आयत से भी मालूम हुआ कि सुबह और शाम बुरे लोगों को उनका ठिकाना दिखाया जाता है, और नेक लोग होते हैं उनका भी ठिकाना बतलाया गया है हदीस में, उनका भी ठिकाना सुबह शाम दिखाया जाता है। जन्नत सुबह शाम दिखाया जाता है, उनका ठिकाना जन्नत, और उनसे कहा जाता है यही तुम्हारा ठिकाना होगा कयामत के बाद। और जो बुरे हैं जहन्नम दिखाई जाती है और उनसे कहा जाता है यही ठिकाना तुम्हारा होगा कयामत कायम होने के बाद। ये दोनों का ठिकाना क्या है, बाकायदा दिखाया जाता है। नेक लोग जो मोमिन हैं वो कहते हैं जल्दी कयामत कायम हो जाए, और जो बुरे हैं वो कहते हैं कभी कयामत कायम ना हो, कभी कयामत कायम ना हो, कयामत नहीं मांगते। ये कब्र की जिंदगी का मरहला है। तो मुख्तलिफ अंदाज में क्या है, कब्र में इंसान को अजाब दिया जाता है। इसलिए कब्र की तैयारी करो, ये आखिरत की पहली मंजिल है कब्र। जो इसमें कामयाब हो गया वो आखिरत में कामयाब हो जाएगा, और जो यहाँ फेल हो गया, यहाँ नाकाम हो गया, वो आखिरत में नाकाम हो जाएगा। इसलिए दुनिया में जो जिंदगी मिली है कब्र की जिंदगी के लिए, आखिरत के लिए तैयारी कर लो, ताकि कब्र की जो पहली रात होगी, पहली घड़ी होगी, पहला सवाल जवाब होगा, उसमें तुमको नजात मिल सके। इसके लिए दुआएं करते रहो, गुनाहों से माफी मांगते रहो, इस्तिग़फ़ार करते रहो, और मोमिनाना जिंदगी गुजारो, अल्लाह रसूल के रास्ते पर चलो, और आखिरत की तैयारी करते रहो, कब्र की जिंदगी की तैयारी करते रहो, और अल्लाह के अजाब, अजाब कब्र, अजाब जहन्नम और अजाब महशर से पनाह मांगते रहो, अल्लाह के गजब से पनाह मांगते रहो। और इसके लिए इस तरह से तुम क्या है दुनिया में तैयारी करते रहो। नहीं मालूम कि मौत तुम्हें कब पुकार ले और तुम्हें लब्बैक कहना पड़े, तुम ना नहीं कह सकते हो। मौत की पुकार होगी और तुमको उसके पास जाना होगा, तुम्हें जर्रा बराबर क्या है मोहलत नहीं मिलेगी। इसलिए कब्र की जिंदगी के लिए तैयारी कर लो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को अजाब कब्र से, अजाब जहन्नम से और मैदान महशर के अजाब व परेशानी
پریشانی سے اللہ رب العالمین تو ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہیں اللہ تو ان کی پریشانی کو دور عطا فرما۔ جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما۔ جن کے والدین اللہ دنیا میں زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ایمان کی حالت میں اللہ تعالیٰ تو ان کی مغفرت عطا فرما، انہیں عذاب قبر سے بچنے ان کا ٹھکانہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ تو ہم سب کو عذاب قبر، عذاب جہنم اور میدان محشر کے عذاب پریشانی سے بچا لے۔ اللہ آخرت کی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور ہر طرح کے گناہوں سے اللہ رب العالمین تو ہم سب کو محفوظ کر لے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے اوپر اپنی رحمت کی بارش کا نزول عطا فرما۔ اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأعلى وجل وتم وهم أكبر